संसद की कार्यवाही की तस्वीरें आ रही है, देखिए। I'd like to give a little bit of background to this question, sir. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes in democratizing technology. We have seen how some of the Congress leaders used to treat technology. They used to feel that technology cannot be used by the poor people. But in our case, Honorable Prime Minister has got the technology right into the hands of the poorest of the poor. And same is the case with the AI mission. So a very comprehensive India AI mission has been started, Honorable Speaker Sir, which has 7 pillars, and all these 7 pillars are very well thought through. The first pillar is creating AI compute facility. Second pillar is creating a skill framework. Third is to create startup financing. Fourth pillar is creating an innovation center. Fifth is about datasets platform, and the seventh platform is about creating new applications. And the last platform is about having a safe and trusted AI. The Honorable MP has raised the question, how many people have got enrolled in the future skills. As on today, 8.6 lakh candidates have enrolled in AI in the future skills platform. And this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So the training which is given is very relevant to what the industry today needs. No, I think you're missing the question, because प्रश्न यही है कि 9.5 करोड़ 8.5 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप 3 लाख ही साल का ट्रेन कर पाए हैं, तो वही है कि is it not sufficient, and therefore what is your plan? Anyway, that's a question, please. Or thank you for running the House run today, because yesterday also question asked, we were trying to run and clearly BJP was disrupting yesterday. But 27 डेटा लैब जो आप बनाए हैं, क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ ठीक, वही 27 डेटा लैब का पूछ रहे हैं सर कि जो डेटा लैब आप बना रहे हैं कि ये आपका क्या प्रावधान है कि मेरे सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी एआई की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेसी may be dispensed with. Shri Nityanand Rai to move a motion for election of one member to the Committee on Official Language. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश करे, सभा राजभाषा समिति में विद्यमान रिक्त को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त समिति का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें। Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, I have received 5 notices under Rule 267. The notice of Dr. John Brittas Honorable Minister.
Minister. सर We should. One second. We should. in the society, and the legal framework has to change, and a lot of consensus is required to be created around this, because these are issues where the freedom of speech comes on the one hand, and the accountability and having a proper real news network getting created on the other hand. So these are things which need to be debated, and if the House agrees, and if there is a consensus in the entire society, we can come up with a new law. We are open to that idea. On the point of privacy, I would like to share with the Honorable Speaker, sir, that we have created 8 projects for developing tools, for developing technologies within our country, so that the emerging landscape of AI can be dealt with the tools and technologies that are available and developed within the country. The list of the projects is given in the answer, and it is laid on the table of the House. So I don't want to repeat that, sir. श्री अनूप धोत्रे. Sir, I would like to add, what initiative government has undertaken to promote responsible AI development and development in key sectors like health, finance, education, and how their effectiveness will be monitored and evaluated? माननीय स्पीकर सर, ये बात सही है कि एआई का जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला है ऐसे सेक्टर्स में होने वाला है जिससे कि जन जन के जीवन पे उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ सके. एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, इन सब में एआई की एप्लीकेशंस जो देश के काम में आए, देश की ज़रूरतों के अनुसार हो, उसको डेवलप करने के लिए जो एआई मिशन के 7 पिलर्स हैं, उसमें से एक बड़ा पिलर है एप्लीकेशन डेवलपमेंट. और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई के लिए 8 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, एनआईटी रायपुर, पुणे, आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली और इस तरह से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलके 8 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं जिन प्रोजेक्ट्स से टूल्स डेवलप हो जो रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए. आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे. आज जो सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है. ये रिपोर्ट हमारा नहीं है. अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है. कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने है. शर्म आना चाहिए आप लोगों को. देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं. जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं. हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए. आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो. ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है. हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है. इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है, इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है. हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है. हम लोग फक्र महसूस करते हैं. और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे. और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए. सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए. मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का
जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। I know the opposition wants to move a no confidence motion, but the point is this is not the neutral. The previously when Shankar Sharma was the chair, now the very same house he broke down. Sir, this is not due. I know. The House, मैं सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम वापस करना चाहते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे हैं। तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, तमाम बातों का जिक्र किया गया। राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने सदन की गरिमा को बिगाड़ा और सभापति को लेकर सदन के बाहर नारेबाजी हुई। विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव नाटक है, ये किरण रिजिजू का स्टेटमेंट रहा। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, हर दिन बिल्कुल एक ही तस्वीर, कार्यवाही शुरू होती है और फिर कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। और देखिए, दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो किरण रिजिजू तमाम बातों का जिक्र, संसदीय कार्य मंत्री। और देखिए, राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा एक बार फिर से, और जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई, ये किरण रिजिजू का स्टेटमेंट। सोरोस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश, सोरोस की भाषा बोलती है कांग्रेस, ये किरण रिजिजू ने कहा है। तो सभापति के खिलाफ नोटिस, शर्मनाक। इसी के साथ किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से सदन की कार्यवाही जो कि स्थगित करनी पड़ती है। आज भी सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, राज्यसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित करनी पड़ी और हर दिन हम एक बिल्कुल सेम तस्वीर देख रहे हैं। सदन की जो कार्यवाही है वो वॉश आउट हो रही है, और आज भी जो विपक्ष की तरफ से सदन के बाहर की हमने तस्वीर देखी, किस तरह से फूल और तिरंगा दिया जा रहा है, प्रदर्शन वहां पर किया गया, और इसी के साथ सदन के भीतर जोरदार हंगामा विपक्ष का। और देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई चल नहीं पा रही है और आज विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ये पूरा हंगामा किया गया है। नई तरीके से आज प्रदर्शन भी विपक्ष द्वारा किया गया। साफ तौर पर है कि सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है और ये
निश्चित रूप से दुखद स्थिति है। कल किरण रिजिजू शाम को मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक एजेंडा बना लिया है कि वो सिर्फ शोर शराबा करेगा। राहुल गांधी को उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस के लोग जाकर के उनको समझाएं कि किस तरह से सदन की कार्रवाई अगर चलती है तो लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन किस तरह से बिल पेंडिंग है, बिल पास नहीं हो पा रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती ये है कि सदन चले तो चले कैसे, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है। एक तो अडानी मुद्दा है, दूसरा अब कल राज्यसभा में नोटिस सांसदों द्वारा दी गई कि अविश्वास प्रस्ताव का, और उसके बाद अब उसको लेकर के भी सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इस तरह से जो हरकतें की जा रही हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से जब कार्रवाई सभापति राज्यसभा के करते हैं तो फिर शोर शराबा और नोटिस देने की क्या जरूरत थी। लेकिन विपक्ष का अपना एजेंडा है और एजेंडे के तहत लगातार विपक्ष आगे बढ़ रहा है। साफ तौर पर है कि विपक्ष के सामने भी चुनौतियां हैं कि इंडिया गठबंधन को कैसे साथ रखा जाए। हालांकि उसमें थोड़ी सी कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि विपक्ष के साथ ये कहा जा रहा है कि टीएमसी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, अगर होता है तो फिर उसमें समर्थन करेगी, लेकिन इस बार इस सत्र में लगता नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, क्योंकि 15 दिन का लगभग 14 दिन का समय चाहिए होता है और सदन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही खत्म किया जा सकता है। हालांकि जो नियत तिथि है वो 20 तारीख है। जी चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लगातार जो है वो सदन की जो कार्यवाही है हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ती है और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।